वैली ऑफ फ्लावर्स से निकलने के बाद अगले दिन हमारे लिए एक बहुत ही शुभ दिन था, क्योंकि हम जाने वाले थे वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। 15,000 फीट की ऊंचाई पे एक ग्लेशियर लेक और वहाँ पे गुरुद्वारा। इट वॉज गोइंग टू बी ए चैलेंजिंग टास्क। दिस इज़ डे 4 एंड मैं निकल पड़ा हूँ वर्ल्ड के हाईएस्ट गुरुद्वारा की तरफ, दैट इज़ हेमकुंड साहिब एट 14,250 feet, and my group is coming behind. I don't want to lag behind today. It's going to be a long climb and it's cold. हेमकुंड कोई ट्रैक नहीं, बल्कि ये सिख धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही पवित्र एक यात्रा है, जैसे हमारी तीर्थ यात्रा होती है हिंदुइज्म में। तो ये पूरा एक पाव्ड स्टोनी वे है और ये ऊपर तक चढ़ता है। ऐसे ही इंक्लाइंड है 4,000 फीट का। One very bad thing happened. I forgot to bring my GoPro batteries. I have the GoPro in my bag. दोनों बैटरीज कल रात को फुल चार्ज किया था and I completely forgot them in the room. I just forgot it. So wide angle, time lapse shots, I'll be missing it. I have to utilize this camera to its full potential today. And I am 2.5 kilometers up. At 3 kilometers we will halt for some time. Yeah, we are way above Fuloki Ghati trail. See the last highest trail. 100%. There is a trail. We're going to reach the top of the mountain level or what? I think so. Looks like that. If not that one, at least that one. Yeah, at least halfway is over, no? हाँ, I think in terms of elevation also halfway is over. हाँ, almost halfway. Yeah. Almost halfway. But don't you feel it is much better on Much yesterday, better right? trail because this Joyful actually. your foot can rest properly, Correct. and we are totally under shade and it's cold. It's a great thing. Yeah. हाँ, Cool breeze है. yes. ज़्यादा ठंडा भी नहीं है. I mean, नहीं, it's like it's controlled. comfortable. Yeah. And इसलिए मैंने वो भी उतारना नहीं पड़ा अभी तक. Yeah. No jungle Because trail. the water na, Hmm. that is like a 1.5 liter. So you strap in. So strap निकल गया है. उसको 2 बार फोल्ड करके डालना होता है. हाँ डाला था. I don't know something. No, I just pulled this. I have used it many a times in Maharashtrian tracks. It has a problem. It Suddenly it becomes loose. sometimes the water doesn't come out. Yeah. Same thing happened. So I pulled. So we are at almost 3 kilometers, halfway up. We'll have our pre-packed lunch here and look at the grand view. Look at this. This is just amazing. And the best thing about today is we are totally under the shade of one side of the mountain. We'll get sunlight, I think direct sunlight, when we reach Hemkund Sahib. This is Vinay.
Also, that doesn't matter. Yeah, that doesn't matter. And you're like reading. मैंने कर दिया। There's a glacier and it's going down like this. It's a full glacier going down. It will melt and become a waterfall. These are all hard ice and rock. We are at almost 13,000 feet right now, and some of our trekkers are not feeling good. They are having some AMS issues. अपने आँखों के सामने ग्लेशियर को पिघलते हुए देखना एक अद्भुत दृश्य होता है नेचर का, और इसके पीछे जो साइंस है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है। ये पेव्ड वे तो है, लेकिन इसका इंक्लाइन काफ़ी ज़्यादा था, तो बहुत सारे लोग म्यूल से भी ऊपर तक पहुंचते हैं। Yeah, we are at a glacier right now. Right behind us is a glacier. It's a huge glacier. You can see it's coming down from up. It's forming a waterfall. So it was a very long journey towards the glacier, and we still have a lot to go. Hopefully, we are hoping for a serene experience over there at the Gurudwara. So yeah, it was a hard climb, but the view happens to be worth every step. Yeah. And we spotted Himalayan blue poppy. It's quite challenging कि अब चलते रहे अपनी एनर्जी को बरकरार रखते हुए, and when you know that you have just arrived the destination, you slowly started feeling the vibe that yeah, now it's getting over. And then two things can happen: either you tend to become slower or you become little faster in excitement. I'm taking the staircase of last 1 kilometer. We are at 13,500 feet right now. It's hot and cold at the same time, and look at the view. It's difficult to talk. Air is quite thin here. हवा पतली हो जाती है, यहाँ पे सांस लेना डिफ़िकल्ट है। I am almost near the Gurudwara. I have 200 meters more, and you can see the valley behind me. And it was a long trek. I am already feeling overwhelming. Let's reach the Gurudwara. Just few steps more. About to reach. गढ़वाल हिमालयाज़ हमेशा से ही बहुत ही सरप्राइजिंग रहे हैं, और ये अगस्त का महीना था, समर चल रहा था, बादल, हवाएं, बारिश सब कुछ एक साथ, और आप जितना ऊपर तक जाओगे आपको बर्फ़ भी मिलता है। कुछ तो बात थी उस जगह पे। उसके गेट तक पहुंचने से पहले ही मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अंदर सब कुछ शांत हो गया है। वहाँ पे अंदर अरदास चल रहा था, और बाहर एक छोटे से माइक में आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अंदर से कुछ एक महसूस हुआ, कुछ एक एनर्जी, कुछ एक वाइब जो आपको पूरी तरीके से शांत कर देता है। उसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है। सिखिज़म में आप खुले बाल में गुरुद्वारा के अंदर नहीं जा सकते। आपको बालों को बांध के हाथ पैर धो के ही अंदर जाना है।
ऐसा माना जाता है कि 1600 शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह ने इस जगह पे अपनी निशान तारीफ लगाई थी। उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने यहाँ पे इस गुरुद्वारे का कंस्ट्रक्शन किया है। और इसका ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। सिर्फ 4 महीने के लिए ये गुरुद्वारा ओपन रहता है, बाकी टाइम इसके छत के ऊपर तक बहुत ही मोटी बर्फ़ की चादर रहती है, तो इंसान वहाँ पे उस टाइम पे नहीं रह सकता। हेमकुंड एक ग्लेशियर लेक है। 15,000 फीट की ऊंचाई पे ये 7 माउंटेन पीक से घिरा हुआ है। इतनी ऊंचाई पे आने के बाद अगर आपने हेमकुंड में डुबकी नहीं लगाई तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे 3 बार डुबकी लगाई। उसमें जो एनर्जी फील हुआ वो मैं बोल नहीं सकता। और पलक झपकते ही सूरज गायब हो गया। एकदम से धुंध आई और पूरा कोहरा छा गया, एकदम जैसे कोई किसी ने मैजिक स्पेल कर दिया हो वहाँ पे, और ठंड और भी बढ़ गई। सो हमने डिप लिया, बहुत ठंडा पानी था। हमने अरदास अटेंड किया, उसमें तो इतने इमोशंस बाहर निकल के आए कि आई वाज जस्ट क्राइंग। मैनी अदर पीपल वर क्राइंग। एंड अभी इतना फॉग है कि कुछ नहीं दिख रहा है। एंड वी आर गोइंग टू द लंगर जहाँ पे खाना खाएंगे, एंड देन वी विल कम डाउन। फॉग है, टेम्परेचर अभी बहुत कम है। यू कैन परसीव दिस फ्रॉम माई वॉइस। दिस इज़ जस्ट ब्यूटिफुल, दिस इज़ अमेजिंग। गुरुद्वारे के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। हमने आखिरी अरदास अटेंड किया जो 12:45 पे ख़त्म होता है। 40 मिनट के उस अरदास पे हम फूट के रोए। वो आप ज़िंदगी में एक बार हेमकुंड के गुरुद्वारे में जाने के बाद ही बता पाओगे। लंगर के खाने ने हमारे शरीर के अंदर गर्माहट पहुंचाई और हम धीरे धीरे नीचे की तरफ बादलों को चीरते हुए उतरने लगे। ऐसा एक्सपीरियंस ज़िंदगी में शायद पहली और आखिरी बार हुआ है, और ऐसा मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप एक बार हो सके तो जाइए।